Hello friends. So today we will discuss the removal of different constitutional authorities like the election commission, the election commissioner, chief election commissioner, the chairman and members of UPSC, chairman and members of NCSC, that is National Commission for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Backward Classes, Comptroller and Auditor General of India, chairman and members of NHRC, CIC, CVC, Central Information Commission, Central Vigilance Commission, Central Bureau of Investigation, NIA, Attorney General of India, etc. In the last lecture, we have discussed about the how these various authorities are appointed. So, method of appointment of these authorities. Today, at a centralized place, I have compiled how these members or how these authorities can be removed from their post. So it is not easy to remove them from their post. There must be some clause, some points, some grounds on which these members can be removed. So we'll study those grounds and who is the person who is responsible to remove these authorities from their post in case those grounds have been met. So we'll discuss that thing today only. So without doing much delay, we'll starting with the lecture. So I am Himanshu. I basically, many years of experience in teaching civil services aspirants because I myself has given, I have given many years of my life to prepare for civil services and has reached till interview level. So I many but have not able to qualify, but definitely my knowledge will help you in understanding the concepts, the topics, and definitely will help you in clearing prelims as well as mains. So we'll discuss the removal of these authorities. Now, Chief Election Commissioner, which is the chairman of the Election Commission. Okay. So इलेक्शन कमीशन आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री. So already we have studied about how these are appointed. So they are appointed by the president. You already know that they are appointed by the president, and the grounds have been changed. Previously it was the president who will be who appoints the chief election commissioner and the election commission on the recommendation of the prime minister. But it has been changed in 2022, and now the chairman, the chief election CEC and ECs have been appointed by a committee which is consisting of the prime minister, leader of opposition in the Lok Sabha, and a chief justice of India or any other justice nominated by chief justice. So this is the ground of appointment, while the removal grounds will study that the chief election commissioner cannot be removed from his office except in the same manner and on the same ground as judge of the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसीजर जो है वही प्रोसीजर, वही ग्राउंड्स एंड वही मैनर यूज होगा टू रिमूव दी सीईसी. चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है इसमें. इन अदर वर्ड्स, ही मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर. Chief Election Commissioner can be removed by the President on the basis of a resolution passed by both the houses of Parliament with special majority. Special majority आप जानते हैं 50% of the 50% of total membership of the house with 2/3 of the members present and voting. स्पेशल मेजोरिटी होता है. इट ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. प्रूव मिसबिहेवियर यानी कि मिसबिहेवियर प्रूव करना पड़ेगा या इनकैपेसिटी अगर प्रूव हो गई तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट रेजोल्यूशन विद स्पेशल मेजोरिटी अगर पास कर देते हैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन स्टैंड्स रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन डेट ऑन विच सच रेजोल्यूशन इज डीम्ड टू बी पास्ड. Thus he does not hold his office till the pleasure of the president, though he is appointed by him. अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं बट प्लेजर तक वो नहीं रहते हैं. उनके रिमूवल का ग्राउंड काफ़ी डिफिकल्ट है जो कि एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ग्राउंड है. अब इसमें एक लूप होल है. एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर, जो और इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर अपॉइंट होते हैं करता है प्रेसिडेंट, दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो इनका ग्राउंड थोड़ा सा गड़बड़ है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंड कर दे कि पर्टिकुलर इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है पोस्ट से, तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है.
ये अभी तक प्रॉब्लम, मतलब मुझे लगता है कि इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को एक डिसीजन देना चाहिए कि इलेक्शन, बिकॉज दी चीफ इलेक्शन कमीशनर एंड इलेक्शन कमिश्नर एक सेम पार पे हैं, दे ऑन द सेम लेवल एंड दे इज नो, सो दे होल्ड द सेम रैंक, दे होल्ड द सेम पावर, दे होल्ड द सेम अथॉरिटी। कोई चेयरमैन मेंबर्स नहीं है इसमें, दे ऑल सीसी एंड ईसीज होल्ड द सेम अथॉरिटी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ग्राउंड तो बहुत डिफिकल्ट है रिमूवल का, वाइल इलेक्शन कमिश्नर का ग्राउंड ऑन दी बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिखा हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक लूप होल है जिसको सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करना चाहिए मेरे हिसाब से। इनके रिमूवल के लिए भी सेम मैनर होना चाहिए ऑन द सेम ग्राउंड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी है। बट अभी ऐसा नहीं है, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंड कर देगा तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सो दीज आर दी दिस इज द प्रोसीजर टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। सीबीआई डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर का थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको किताबों में नहीं मिलेगा, नेट पे भी इजीली नहीं मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आपको पता है सीवीसी एक्ट के माध्यम से 2 साल मिनिमम कर दिया गया है कि 2 साल तक आपको पोस्ट पर रहा। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गई तो इन स्पाइट ऑफ योर सुपर एनुएशन डेट यू विल होल्ड द पोस्ट फॉर 2 ईयर्स, मिनिमम 2 ईयर्स सीबीआई डायरेक्टर रहेगा। बेसिकली यही टू इम्पार्ट impartiality or to provide security of tenure so that he can take impartial and objective decisions and corruption free decisions. He she shall not be transferred except, तो इसके अपॉइंटमेंट के लिए मैंने बताई थी एक कमेटी होगी, तो वही कमेटी की कंसेंट के बिना वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो पीएम, लीडर ऑफ पोजीशन, डिप्टी चेयरमैन, सॉरी सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट के लिए भी कमेटी वही है जो कि उसके लिए है, सी इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए है, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, सीजे और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम। तो उनकी कंसेंट के बिना वो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। डायरेक्टर शैल नॉट बी ट्रांसफर विदाउट द कंसेंट ऑफ दिस सिलेक्शन कमेटी। बट एक इसमें एक चीज है कि रिमूवल अगर इनका करना है तो रिमूवल के लिए सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का को प्रेसिडेंट रेफरेंस भेजेगा। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अगर इंक्वायरी करता है और अपहोल्ड करता है रिमूवल को, तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। हैव द अथॉरिटी, ओनली प्रेसिडेंट वुड हैव द अथॉरिटी टू रिमूव और सस्पेंड द डायरेक्टर ऑन रेफरेंस बाय द सीवीसी ऑफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी का रोल नहीं है, सिलेक्शन कमेटी का रोल केवल ट्रांसफर तक है। रिमूवल के लिए सीवीसी की अगर रिकमेंडेशन आती है तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर ऑन इनकैपेसिटी। हेयर द प्रेसिडेंट अगर सीवीसी ऐसा भेज देता है कि नहीं इसको रिमूव करना है, तो इट इज बाउंड ऑन द प्रेसिडेंट टू रिमूव सच सीबीआई डायरेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बाउंड है प्रेसिडेंट अगर सीवीसी का कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन या कोई भी ऐसी एडवाइस आती है तो। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ सीबीआई डायरेक्टर, जो कि नहीं होना चाहिए। रिमूवल के लिए भी कोई कमिटी होनी चाहिए और कमिटी ही रिमूव कर सके केवल, जो कि नहीं है। नाउ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स को रिमूव करने के लिए कुछ 3-4 क्लॉज दिए हुए हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है कि वो इन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना डिक्लेयर कर हो जाए, या फिर इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई ऑक्यूपाई ना करे, कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ना ले ले बाहर, और इफ इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, यानी कि माइंड और बॉडी का इन्फर्मिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। ये नहीं कि ल्यूनेटिक या फिर कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब डेप्ट लिया है और रीपे नहीं किया। इन्फर्मिटी ऑफ माइंड मतलब ही कैन नॉट टेक डिसीजंस, ही कैन नॉट participate in regular affairs of the of the institution. So these are the grounds on which the president can remove the chairman. In addition to these, the president can also remove the chairman or any other member on the grounds of misbehavior के ground, incapacity नहीं, misbehavior के ground पे। However, in this case, the president has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry. Supreme Court को inquiry के लिए refer करेगा। Supreme Court after an inquiry upholds the cause of removal and advises the president to do so. The president can remove the chairman or a member. The advice standard is binding on the president. Advice binding है Supreme Court की। The course of in the course of inquiry during the president can suspend the chairman or member. ठीक है ना? तो 3-4 ग्राउंड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सेम ग्राउंड्स इनके भी यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए गवर्नर होता है, और प्रेसिडेंट यूपीएससी
के चेयरमैन और मेंबर्स को रिमूव करने के लिए मिसबिहेवियर का भी ग्राउंड हो सकता है, बट वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए। तो मिसबिहेवियर क्या होता है? मिसबिहेवियर मतलब कि अगर आपने कोई आपने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट दिखा दिया, सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखा दिया, ये वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑक्यूपाई कर लिया, ये सब पॉइंट है मिसबिहेवियर के। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के रिमूवल के लिए भी वही प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। मिसबिहेवियर सेम जो यूपीएससी एसपीएससी के लिए था, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी रेफर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, अपहोल्ड करेगा कॉज ऑफ रिमूवल और एडवाइस करेगा तो प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। इसके अलावा डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एंगेजेस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट और अनफिट टू कंटिन्यू बाई रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, सेम नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल बैकवर्ड क्लासेस का भी सेम ग्राउंड है, जो कि अभी हमने यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ा था। कैग, कैग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का है, जैसे सीईसी के लिए है, वही स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी होगी, जो कि सीईसी के लिए भी प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी है, तो आप रिमूव कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल, वेरी सिंपल, during the pleasure of president he holds office, so it means that he may be removed by the president at any point of time। कभी भी रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट, जैसे गवर्नर होल्ड करते हैं जो पोस्ट है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और कभी भी रिमूवल हो सकता है। इसी तरीके से अटॉर्नी जनरल का भी रिमूवल हो सकता है। एनएचआरसी, सीआईसी, सीवीसी, इन तीनों का सेम है। रिमूव द चेयरपर्सन in undischarged insolvent, engages in any paid employment, unfit to continue by reason of infirmity of mind। इसके अलावा अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स ऑफ डिक्लेयर्ड बाय कंपिटेंट कोर्ट, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, प्लस कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रीजनमेंट, कोई भी इम्प्रीजनमेंट अगर हुआ हो उनको ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के लिए, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। और साथ में मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट अगर एडवाइस करेगा, अपहोल्ड करेगा कॉज ऑफ रिमूवल, तो फिर रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, एनएचआरसी में। अच्छा, दिस वन पॉइंट इंपॉर्टेंट, किन्हीं जगहों पे लिखा होगा प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, और किन्हीं जगहों पे प्रूव मिसबिहेवियर, तो ये याद कर लीजिए आप। प्रूव मिसबिहेवियर जो है, अगर हम देखेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, तो प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी है। यूपीएससी एसपीएससी के लिए केवल प्रूव मिसबिहेवियर है। ठीक है, और एनसीएससी एनसीएसटी इनके लिए भी प्रूव मिसबिहेवियर है, लेकिन कैग के लिए, एनएचआरसी के लिए और सीईसी के लिए प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। तो इनके प्रूव मिसबिहेवियर केवल यूपीएससी एसपीएससी और साथ में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए केवल प्रूव मिसबिहेवियर, इनकेपेसिटी नहीं है। बाकी सबके लिए प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी है। सीआईसी अगेन, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन्वॉल्व्स अ मॉरल टर्पिट्यूड। मतलब मान लीजिए जिसे पता लगेगा कि आप अनसाउंड माइंड के हो गए, आप ऐसे ऑफेंस में आप हैं, जैसे करप्शन वो हो गए, ये ऐसे चार्जेस हो गए जैसे एडल्ट्री हो गया, बायगेमी हो गया। ठीक है, ऐसे चार्जेस जिससे आपका जो है मानसिक जो है संतुलन बिगड़ चुका है, या आप बेकार हो चुके हैं, अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते ऑफिस में। ऑफिस रिक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट इज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशियली ऑफिशियल फंक्शंस। और वही फाइनेंशियल और ऐसे इंटरेस्ट है उसको, जिसकी वजह से वो अपने फंक्शंस को, ऑफिशियल फंक्शंस को इंटरेस्ट नहीं कर सकता, उसको नहीं निभा सकता। इन एडिशन टू दिस मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर अपहोल्ड करेंगे तो फिर प्रेसिडेंट को बाइंडिंग होगा, प्रेसिडेंट उनको रिमूव करेंगे। तो सीआईसी के लिए मोरल टर्पिट्यूड का एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, और साथ में सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट इज लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिशियली ऑफिशियल फंक्शंस। सीवीसी के लिए अगेन सेम, बिल्कुल सेम है जो कि सीआईसी के लिए है। मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो आप सब में यही लिख दीजिएगा, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इज ऑफिस, in any paid employee outside the duties of his office, in undischarged insolvent, infirmity of mind, unsound mind, stands for declared by moral turpitude, कोई भी offense है which involves a moral turpitude, और acquired such financial or other interest,
गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटरेस्ट है उसको। लोकपाल, प्रेसिडेंट कैन मेक अ रेफरेंस टू दी सुप्रीम कोर्ट इधर ऑन हिज ओन, सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करने के लिए भेजेंगे प्रेसिडेंट, या अगर 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन करके पिटीशन भेजते हैं रिमूवल के लिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर। इसमें भी ओनली मिसबिहेवियर है, जो कि यूपीएससी एसपीएससी के लिए और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए था। प्रेसिडेंट रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करनी पड़ेगी इसमें भी। एनआईए डीजी कैन बी रिमूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो प्लेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करते हैं, तो कभी भी रिमूव किए जा सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये जो पॉइंट्स हैं वो याद रखना होगा आपको कि भाई अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ convicted of an offense that involves a moral turpitude, unsound mind censored declared by a competent court, ठीक है। if he acquires interest in financially which officially affects his official functions, ठीक है। और एनएचआरसी के लिए किया था कि सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी सब में है, केवल यूपीएससी को छोड़ के, और साथ में नेशनल कमीशन शेड्यूल का, बाकी सब के लिए प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी भी एक और पॉइंट है। तो ये हो गया रिमूवल के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशंस ऑफ सर्विस पढ़ेंगे, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ दीज अथॉरिटीज, क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस है और क्या एमोलूमेंट्स उन्हें मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच तब तक के लिए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।